Children, today we will start the little fir tree. The little fir tree. The little fir tree. We will read it. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Read it again. इसको दोबारा से पढ़ते हैं. Okay. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. What I read, children? It rained heavily. Shetty looked around for shelter. Shelter, 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 and saw a pretty little fir tree. It is pretty little fir tree, and it is Shetty the magician. It is Shetty the magician, and it is little fir tree. He ran towards it as fast as he could. He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Soon the rain stopped. Shetty was happy. Shetty was happy. Shetty is the name of magician, and he is a magician. That he did not get wet. Shetty was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. I would like to reward you. या फिर बोल सकते हैं I would like to give you something because you saved me from the rain. Ask for 4 wishes that I will grant them, said the magician. Ask 4 wishes that I will grant them, said the magician. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. ठीक है, उसकी leaves explain. Tomorrow I will explain. Tomorrow जब भी next class English की होगी. So it is said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning, its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves, as goat do not eat gold leaves. Okay children, now let's start again. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole all gold leaves. Gold कलर का हो गया. देखो, man is coming and stole all gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. Okay. Now he wished he should have glass leaves, कांच के leaves, so that men will not steal them. Now come here. Next day, its glass leaves shone bright in sun. How happy I am, it said. At night the wind blew. Woo, woo, woo. All glass leaves broke. All glass leaves broke. Okay children, now come on the last page. Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. Goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. Wind will. Read it again. Okay children. Oh dear, said the fir tree. I like my old needle leaves best, for goats do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. Wind भी उनको कोई harm नहीं पहुँचाएगी. The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy. I was never so happy, said the little fir tree. Said the little fir tree. Okay children.
Okay children, now let's start the chapter. Today we will have explanation. The last day यानी yesterday we have read it. इसका हमने reading सीखा था, pronunciation सीखा था. Now we will have the explanation for this chapter. Okay children, if you will see, अगर आप ध्यान से देखेंगे, chapter name is the little fir tree. fir tree एक ट्री का नाम होता है. हिंदी में इसको बोलते हैं, बट आपको हिंदी में जानने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश क्लास. ठीक है, फिर ट्री है, आप उसकी क्वालिटी जानो. फिर ट्री कैसा होता है, जिसमें निडल लाइक लीव्स होते हैं, मतलब सुई जैसे लीव्स होते हैं. प्रॉपर जो एक मोटा लीफ होता है वैसा लीफ इसमें नहीं होता है फिर ट्री में. ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट आपको जानना कि ये जब भी आप इस तरह का ट्री देखो तो वो एक फिर ट्री है. ठीक है, बाकी हिंदी में कुछ दावेदार कुछ ऐसे कुछ कहते हैं. आई विल टेल यू, गूगल पे सर्च करोगे आराम से मिल जाएगा फिर ट्री का मीनिंग. द लिटिल फिर ट्री. ओके, ओके चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट इट. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. लिटिल फर ट्री, इसको फिर भी बोलेंगे, लेकिन आप इसकी प्रोनाउंसिएशन सर्च करेंगे तो देन इट इज़ फर ट्री. ओके, ये आप आराम से, यहाँ पे आपको एक फर ट्री दिख रहा है. आई विल शो यू. इट्स अ फर ट्री. इट्स अ मजिशियन जिसका नाम शेटी था. वी हैव रेड इट. ये चीज़ आपको पता है. ओके, ही हैज़ अ मैजिक वैंड इन हिज हैंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. शेटी द मजिशियन वॉज रिटर्निंग होम. जो शेटी एक मजिशियन था, एक जादूगर था, वो घर लौट रहा था. रिटर्निंग मतलब लौटना. व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगैन टू रेन. व्हेन तब, ऑल ऑफ अ सडन इट मतलब अचानक से, इट बिगैन टू रेन क्या होने लगी. बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगैन, तो रेन होने लगी. इट रेन्ड हैविली, बहुत ही भारी रेन हुई. शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. शेटी ने आसपास देखा. शेल्टर मतलब उसको कहीं छाँव मिल जाए, रुकने की शेल्टर मिल जाए, जगह मिल जाए. सो अ प्रेटी लिटिल फर ट्री, एक बहुत ही सुंदर उसने फर ट्री देखा. ही रैन, रन की सेकेंड फॉर्म होती है रैन, वो भागा. टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ, ट्री की तरफ. एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ वो भाग सकता था. कुड मतलब सकता था. कुड का मीनिंग सकता था, तो उतनी तेज़ वो भागा. एज फास्ट एज मतलब जितना तेज उतना वो भागा. टूवर्ड्स मतलब तरफ. सून द रेन स्टॉप्ड, सून जल्दी ही रेन स्टॉप रुक गई. शेटी वॉज हैप्पी, शेटी खुश था. वॉज मतलब था. डैट कि ही डिड नॉट गेट वेट, क्यों वो खुश था कि वो भीगा नहीं. डिड नॉट गेट वेट, यहाँ पे वेट का मतलब होता है भीगना. क्या होता है चिल्ड्रन वेट का मतलब? भीगना. वो भीगा नहीं इसलिए वो खुश था. भीगना होता है वेट का मीनिंग. ओके, स्टॉप्ड रुकना. रेन यू नो, कुड सकता था. प्रेटी सुंदर. मजिशियन जादूगर. ठीक है. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. तो मजिशियन बोलता है थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु थे. आई वुड, काइंड का मतलब दयालु. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहूँगा. रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? इनाम. क्या होता है रिवार्ड का मतलब? इनाम. मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहूँगा, ये मजिशियन ने बोला. आस्क फॉर विशेज़, आप कोई भी 4 इच्छाएं मांगो. आई विल ग्रांट दैम, मैं उनको पूरी करूँगा. सेड द मजिशियन, ये मजिशियन ने कहा. कोई भी 5 इच्छा मांगो, मैं उनको ग्रांट कर दूँगा, मैं उनको आपको दे दूँगा, वो इच्छाएं आपकी पूरी कर दूँगा. ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, द सैड फर ट्री, जो सैड था फर ट्री, हैड लीव्स लाइक नीडल्स. हैड लीव्स लाइक नीडल्स, नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. अब क्या हुआ, जो ये ट्री था वो खुश नहीं था. मजिशियन ने देखा वो सैड था. वो सैड क्यों था? क्योंकि जो उसकी लीव्स थी वो सुई जैसी थी, नीडल जैसी. नीडल्स मतलब सुई. नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी उसके ऊपर अपना नेस्ट यानी घोंसला नहीं बनाता था. नेस्ट का मीनिंग घोंसला. ठीक है, कोई भी पक्षी नहीं बनाता था, क्योंकि नीडल में घनापन नहीं है ट्री में, तो वो जो घोंसला है वो छुपा नहीं रहेगा, कोई भी देख लेगा, कोई भी तोड़ देगा. इसीलिए बर्ड्स उस पर घोंसला यानी कि नेस्ट नहीं बनाती है.
सो इट इज़ सैड आई विश, तो उसने कहा आई विश डेट आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, मेरे भी आप ग्रीन लीव्स कर दो जैसे कि मेरे बाकी जो और ट्री फ्रेंड्स हैं उनके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठा उसकी विश, उसकी इच्छा पूरी हो गई। सून अ गोट केम, जल्दी ही एक गोट आ गई, यू कैन सी इट्स द गोट दैट इज़ बकरी, गोट आ गई। एट ऑल द ग्रीन लीव्स, सारी की सारी देखो शी इज़ ईटिंग ऑल द ग्रीन लीव्स। ओ डियर सेड द फिर ट्री, फर ट्री ने कहा ओ डियर आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, मेरी कैसी लीव्स हो, सोने की, गोल्ड लीव्स हो। एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्योंकि जो गोट है वो गोल्ड लीव्स नहीं खाती हैं, इसलिए मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि मेरी भी लीव्स कैसी हो, गोट की हो, ओ गोल्ड की हो, सोने की हो। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जब, when मतलब जब, little fir tree woke up मतलब उठा, next morning अगली सुबह, it was surprised, वो surprised हो गया, to see gold leaves, सोने की लीव्स देखकर। How happy I am, it said, उसने कहा मैं कितना खुश हूँ। Children, here you can see leaves, है ना, गोल्ड की लीव्स आप देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग विद द गोल्ड लीव्स। अ मैन केम along and stole all gold leaves, you can see men are stealing leaves, सोने की लीव्स चुरा रहे हैं। स्टोल मतलब चुराना, स्टील मतलब चुराना होता है और उसकी पास्ट फॉर्म होती है स्टोल, चुरा लिया। तो जब उसने देखा कि मैन ने गोल्ड लीव्स चुरा लिए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, उसने कहा इसके बजाय अब मेरी ग्लास लीव्स होती, यानी कांच की लीव्स होती, ग्लास मतलब कांच की लीव्स होती। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि मैन जो हैं वो ग्लास लीव्स नहीं स्टोल करते हैं, स्टील करते हैं, नहीं चुराते हैं। स्टील मतलब चुराना, स्टोल मतलब चुराया। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, नेक्स्ट सुबह उसके ग्लास लीव्स चमक रहे थे सन की धूप में। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, उसने कहा मैं कितना खुश हूँ, किसने कहा, फर ट्री ने। एट नाइट द विंड ब्लू, रात को विंड ने मतलब विंड बही, विंड ने ब्लो किया, चल रही थी हवा, वू शू वू, ऐसी आवाज़ आती है, विंड ब्लो करती है। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, जब तेज़ हवा चल रही थी तो क्या हुआ होगा बच्चों, उनके जो ग्लास के लीव्स हैं आपस में टकरा के वो टूट गए, ब्रोक यानी ब्रेक हो गए। ब्रेक की पास्ट फॉर्म होती है ब्रोक, ब्रेक मतलब टूटना और ब्रोक मतलब टूट गए। ओके, डियर चिल्ड्रन यू कैन सी दीज आर ग्लास लीव्स, देखो ग्लास लीव्स हो रहे हैं, हवा ब्लो हुई, एयर ब्लो हुई, विंड ब्लो हुई, तो देखो टूट के ये सारे जो ग्लास लीव्स हैं वो नीचे आ गए। नाउ द ट्री इज सैड अगेन। ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। ओ डियर, जो मेरे पुराने, ओल्ड मतलब पुराने, निडल लाइक लीव्स थे, सुई जैसे पत्ते थे, वो बेस्ट थे। बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, ओल्ड मीन्स पुराने। फोर गोट्स डू नॉट, क्यों अच्छे थे, क्योंकि गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि उन्हें कोई गोट खाती नहीं थी। नो मैन कैन स्टील देम, कोई मैन उनको चुराता नहीं था। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवा भी उनको कोई हार्म नहीं करती थी। हार्म मतलब नुकसान, कोई भी नुकसान उनको नहीं पहुंचाती थी। कौन नहीं पहुंचाती थी, विंड, ठीक है। द ट्री वेंट टू स्लीप, ट्री सोने गया। वेंट मतलब गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट मतलब गया। ट्री सोने गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह उठा, इट हैड ऑल इट्स निडल्स बैक अगेन, उसकी सारे निडल्स जैसी लीव्स थी वो वापस आ गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मैं इतना खुश कभी नहीं था। सेड द लिटिल फर ट्री, मतलब अपने आप को दोबारा से हासिल करके, जैसे उसकी पुरानी पोजीशन थी, इसलिए कहते हैं जो जैसा है वही बेस्ट है। उसको फर ट्री को ऐसा बनाया गया है तो वही उसके लिए बेस्ट है। तो जैसे आप हो उसी में आपको खुश होना चाहिए। वी डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनी वन एल्स, हमें किसी को भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें यही मिलता है सीखने को चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच। नाउ चिल्ड्रन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQ, टिक की फॉर्म में क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स।
जो प्रिटी लिटिल फिर ट्री था, जो प्रिटी लिटिल फिर ट्री था वो हैप्पी था, वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट अ गोट केम अलोंग एंड एट दैम, एक गोट आ गई उनको खा गई। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, सारी की सारी लीव्स गीली हो गई रेन में। अ मैन स्टोल दैम, देखो प्रिटी मैन गोल्ड लीव्स से खुश क्यों नहीं था? गोट उनको खा सकती है? नो, गोट कोई भी बकरी गोल्ड लीव्स को नहीं खा सकती। रेन भी गोल्ड लीव्स को गीला नहीं कर सकती। बेसिकली गोल्ड एक प्रीशियस मेटल होता है, उसको चुराया जाता है, तो इसीलिए मतलब लोग उसको चुराने के लिए जो चोर होते हैं वो उसको चुराना चाहेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? अ मैन स्टॉल देम, ओके, इसलिए वो हैप्पी नहीं था। द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री क्यों दुखी था? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। नो, वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसको लग रहा था, वो क्यों सैड था? बिकॉज इट हैज़ नीडल लाइक लीव्स, इसका आंसर है इट हैज़ नीडल लाइक लीव्स। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, अगेन आ गया फिर से कि वो गोल्ड लीव्स से खुश नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज द गोट केम एंड एट दैम, अ मैन स्टोल दैम, द गोल्ड लीव्स ब्रोक, तो फिर से आंसर इसका अ मैन स्टोल दैम, ओके। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स से खुश था, लेकिन हुआ क्या था कि एक मैन आया और उनको खा गया। सेम मतलब पहला जो ए और सी है बेसिकली सेम ही क्वेश्चन और आंसर है, बट उनको पूछने का तरीका अलग है, ओके चिल्ड्रन। तो बेसिकली इनके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है अमेन, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो अमेन स्टोल दैम, इट हैज़ नीडल लाइक लीव्स, अमेन स्टोल दैम, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।